नमस्कार, अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरा से सामने आ रही है। बता दें कि लापता वन कर्मचारी का शव बरामद हुआ है और लापता वन कर्मचारी की लाश तालाब से मिली है। आपको बता दें कि पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। ये कर्मचारी 31 दिसंबर से लापता था, जिसका नाम सुरजीत बताया जा रहा है। दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सुरजीत घर से निकला था, लेकिन लगातार लापता, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार तलाश की जा रही थी। अब लापता वन कर्मचारी का शव तालाब से बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 31 दिसंबर से सुरजीत लापता था। दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची और अब लापता वन कर्मचारी का शव बरामद किया गया है। देहरा से इस वक्त की बड़ी खबर, लापता वन कर्मचारी का शव तालाब से बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इकतीस दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाने के लिए दोस्तों के साथ गया हुआ कर्मचारी, जिसका आज शव बरामद हुआ है। 31 दिसंबर से ही सुरजीत लापता था और उसके बाद आज सुरजीत का शव तालाब से बरामद हुआ है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर हैं। गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्रीटिंग्स फॉर द न्यू ईयर। I'm happy to inaugurate the 106th session of the Indian Science Congress. It is a pleasure to be in the company of eminent scientists, scholars and students. वैसे मेरा प्रयास यही था कि आपके बीच समय पर पहुंचूं, लेकिन कोहरे की वजह से विलंब हो गया। साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समृद्धि की इस भूमि पर इस साल इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने एक सटीक विषय चुना है, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की महानता हमारे ज्ञान विज्ञान में तो है ही, पर इस महानता का असली मकसद हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को समाज से जोड़ने का भी है। Friends, the Indian Science Congress has a rich legacy. Some of India's finest minds, including Acharyas, J.C. Bose, C.V. Raman, Meghnad Saha, and S.N. Bose, have been associated with it. Minimum resources में मैक्सिमम स्ट्रगल के दौर में उन्होंने अपने विचारों, आविष्कारों से लोगों की सेवा की। आज भी हम उनके कमिटमेंट और क्रिएटिविटी से सीख रहे हैं। इन 1917 आचार्य जगदीश चंद्र बोस established India's first dedicated scientific research center, the Bose Institute at Kolkata. His inaugural speech was a reflection of his holistic views of science. He said, and I quote, "I dedicate today this institute not merely a laboratory, but
a temple to the nation, unquote. The life and works of hundreds of Indian scientists, areas, are a compelling testament of integration of deep fundamental insights with technology development and nation building. It is through our modern temples of science that India is transforming its presence and working to secure its future. Friends, our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji gave us the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. 20 years ago, in a historic address at Pokhran, our great Prime Minister Atalji had recognized the contributions of science and technology for India. He added, Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. I believe it is now time to take one more step forward. I wish to add Jai Anusandhan. Therefore, the slogan now becomes Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Indeed, the pursuit of Vigyan is fulfilled through achievement of two objectives. The first is generation of profound or disruptive knowledge. The second is consumption of that knowledge for socio-economic good. As we boost our discovery science ecosystem, we must also focus on innovation and startups. Our government had launched the Atal Innovation Mission to promote innovation among our scientists. More technology business incubators have been established in the last 4 years than in the 40 years before that. Industry must now contribute by providing timely direction, vision, mentorship, and partnership to the startups. Our scientists must commit themselves to addressing problems of affordable health care, housing, clean air, water and energy, agriculture productivity, and food processing. While science is universal, technology must be local for providing solutions relevant to the local needs and conditions. साथियों, आज हमारे सामने जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए नेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को सुलभ, सुगम और सस्ते समाधान तैयार करने होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमारे देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। उनको कम श्रम से अधिक पैदावार के लिए टेक्नोलॉजी की सबसे अधिक जरूरत है। हमने कृषि विज्ञान में काफी प्रगति की है। हमारे यहां पैदावार भी बढ़ी है,
गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई है, लेकिन न्यू इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नए विस्तार की जरूरत है। बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और कम्युनिकेशन से जुड़ी तमाम टेक्नोलॉजी का कम कीमत में कारगर इस्तेमाल खेती में कैसे हो, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब आज के समय की मांग है कि इन सारे आविष्कारों के साथ सेंसर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पैकेज बनाकर अपने किसानों की मदद की जाए। इस मदद के जरिए हमारे किसान अपनी फसल, अनाज, सिंचाई, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट और पेस्टिसाइड से जुड़े तमाम फैसले आज के वैज्ञानिक तरीकों की मदद से ले सकेंगे। साथियों, जिस तरह हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमें 125 करोड़ भारतीयों की ईज ऑफ लिविंग पर भी तेजी से काम करना होगा। इसकी दिशा क्या हो, वो स्पष्ट करने के लिए कुछ सवालों पर मंथन किया जाना आवश्यक है। क्या हम अपने देश के कम बारिश वाले इलाकों में बेहतर और वैज्ञानिक ढंग से ड्राउट मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं? क्या बारिश, साइक्लोन और दूसरी आपदाओं की भविष्यवाणी के तंत्र में और सुधार कर सकते हैं? इससे कृषि का फायदा तो होगा ही, अनेक जिंदगियों को भी बचा जा सकेगा। क्या हम अपने देश की दशकों से चली आ रही माल न्यूट्रिशन की समस्या को सुधारने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तलाश कर सकते हैं? ऐसे तरीके जिनसे हमारे बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाए। क्या हम अपने बच्चों को चिकनगुनिया और एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से भारत को मुक्त करने का इलाज ढूंढ सकते हैं? क्या वेस्ट से एनर्जी बनाने और स्वच्छता के लिए सस्ती और आय पैदा करने वाली अधिक प्रभावी तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या हम पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन से जुड़ी नई तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमारे संवेदनशील संस्थानों को ऐसी साइबर सुरक्षा मिल सके कि उसे भेदना नामुमकिन हो जाए? क्या हम सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही कम कीमत में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध हो सके? हमें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। हमें साइंस को सामान्य मानवी के जीवन से जोड़ना ही होगा। तेजी से बदल रही दुनिया में अब हमारे पास और खास करके भारत को न रुकने का हक है, न कोई करे हम उपयोग करेंगे। इस इंतजार का भी हमें वक्त है। अब हमें लीडरशिप लेनी है, हमें दुनिया में कुछ करके दिखाना है। हमें समय के अनुरूप समाधान तलाशने होंगे, वो भी समय सीमा के अंदर। फ्रेंड्स,
2018 was a good year for Indian science. Among our achievements this year are the production of aviation-grade biofuel, Divya Nayan, a machine for visually impaired, inexpensive device for diagnosis of cervical cancer, TB, dengue, a real-time landslide warning system in the Sikkim Darjeeling region. There is, however, a long way to go. We need strong pathway to commercialization that leverage our research and development achievements to industrial products. The future is about convergence and connected technologies. We should catalyze, harness, and manage change for the nation's prosperity. Scopus database indicates that India is positioned among the top 5 nations of the world in terms of the number of scientific publications. This is no mean achievement and deserve wholehearted appreciation. This is the strong foundation to build उन्नत भारत, आधुनिक भारत, वैज्ञानिक भारत। साथियों, उन्नत भारत बनाने के लिए आज भारत के विज्ञान को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। हमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, हमें श्रेष्ठता दिखानी होगी। हमें सिर्फ रिसर्च करने के लिए रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि अपनी फाइंडिंग को उस स्तर पर ले जाना है जिससे दुनिया उसके पीछे चलना शुरू करे। ये मुकाम हासिल करने के लिए हमें रिसर्च का विस्तृत इकोसिस्टम बनाना होगा। आज ऐसे तंत्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पॉपुलेशन डायनेमिक्स की हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केट प्लेस की। आज इसी इकोसिस्टम के जरिए हम अपने देश के टैलेंट पूल के पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें आने वाले समय में नॉलेज सोसाइटी के वर्ल्ड लीडर की कतार में खड़ा होना है, तो देश को अपनी रिसर्च क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव काम करना होगा। हमें लक्ष्य रखकर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने होंगे। साथियों, किसी भी देश की इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी उसके इतिहास, कला, भाषा और संस्कृति से बनती है। ऐसे में हमें विधाओं के बंधन से मुक्त होकर शोध करना होगा। अब ऐसी रिसर्च की जरूरत है जिसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन का फ्यूजन हो। यही हमारे देश की पहचान को सशक्त और गौरवमयी बना सकता है। भारतीय विद्वानों ने विज्ञान से गणित तक, कला से साहित्य तक, भाषा विज्ञान से तर्कशास्त्र और चिकित्सा से लेकर दर्शन तक दुनिया को प्रकाशित किया है, प्रज्वलित किया है। अब समय आ गया है कि भारत दुनिया में उसी स्थान को हासिल करे। यह तभी संभव है
जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक बनकर हम अपनी रिसर्च एंड इनोवेशन के जरिए दुनिया को दिशा दें। फ्रेंड्स, our strengths in research and development are built on the backbone of our national labs, central universities, IIT, IISc, TIFR, and IISER. However, over 95% of our students go to state universities and colleges where research is still limited. A strong research ecosystem must be developed in these universities and colleges. I call upon the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Council to discuss these issues in detail and formulate an action plan in consultation with the Ministry of Human Resource Development to boost research in our colleges and state universities. Friends, in the Tirupati session of Indian Science Congress, I had spoken about the global rise of cyber physical systems. This has the potential to pose an unprecedented challenge to our demographic dividend. We can turn it into the huge opportunity by research, training, and skilling in robotics, artificial intelligence, big data analytics. The government has approved a national mission on interdisciplinary cyber physical systems with an investment of over 3,600 crore. The mission will cover in a seamless way R&D, technology development, human resource and skills, innovation, startup ecosystem, and strong industry and international collaboration. Data is the engine that drives artificial intelligence. Our scientists working with relevant ministries should evolve effective data policy and practices that holistically cover the ground from data generation to data flow to data protection to data sharing to data usage. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा सामर्थ्य, हमारा कौशल हाल में मिली स्पेस मिशन की सफलताओं से पता चलता है। हाल में हमने कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट समेत नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से जुड़े 30 और सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। साल 2022 तक 3 भारतीयों को अपने गगनयान में ही अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसरो ने इसके लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी क्रू एस्केप सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। मुझे अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि गगनयान का हमारा सपना तय समय में पूरा होगा। साथियों, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या हम तकनीक की ताकत से कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, जिससे हमें हाई रिजोल्यूशन जियो स्पेशियल डिजिटल डेटा तेज गति से मिल सके? इससे हम अपने नाविकों, वैज्ञानिकों, प्लानिंग में जुटे लोगों को बेहतर डेटा उपलब्ध करा सकेंगे। ये विकास की योजनाओं की प्लानिंग, मॉनिटरिंग
मैनेजमेंट और उसके इंप्लीमेंटेशन को और प्रभावी बना सकते हैं। साथियों, पिछली बार जब इंफाल में इंडियन साइंस